रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में हम देखते हैं कि मेटल ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स metal oxides plus hydrogen gas and the rate of reaction will be different. It depends on the nature of metal. अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है लाइक सोडियम पोटेशियम तो वो क्या करते हैं इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर कुछ इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है देन दे रिएक्ट वेरी स्लोली एंड देयर आर सम इनर्ट मेटल्स आल्सो व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो हम क्या देखते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने अगर ये ऑक्साइड्स रिएक्टिव मेटल्स के हैं देन दे अगेन रिएक्ट विद वाटर एंड दे गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, सो वी गेट एल्कली। Sodium and potassium, because they are highly reactive metals, they give directly on reaction with cold water only. They give sodium hydroxide and hydrogen gas and energy. And this energy is that much sufficient, means it is a large amount of energy and it is sufficient enough to burn hydrogen gas. So hydrogen gas which is evolving get fire instantly. Calcium on reaction with water, it gives calcium hydroxide and hydrogen gas, and this hydrogen gas has nature to absorb on the calcium itself. So क्या होता है, कैल्शियम जो मेटल है इस मेटल के ऊपर ही हाइड्रोजन गैस जो है उसके बबल्स इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड जो कैल्शियम मेटल है इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। आयरन एंड एल्यूमिनियम जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो वाटर से, हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते बट दे रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम से रिएक्शन करके दे गिव आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Whereas inert metals like lead, copper, silver, gold, they do not react with water at all, neither with cold water, hot water, steam. ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। See the reactivity of metal with water. We perform this type of activity which we discussed in our last slide. I have taken one test tube. In this there is glass wool and it is moist glass wool. It is first it was absorbed in water, then we have taken in test tube. Now we are heating this test tube from this side and in the middle of the test tube there is some metal pieces or metal ribbon or metal strips. So when water vapor will come from this side, it will react with metal and it will produce hydroxide or oxide plus hydrogen gas, and we can collect a hydrogen gas this side. So we can see the rate of reaction, how it is producing hydrogen gas. If it is a highly reactive metal, then we will see bubbles very fast, and if it is an inert metal, then we will see that bubbles are negligible or they are not coming at all. Next, to see the reaction of metals with acids. Now we are discussing reaction of metals with acids. Acids के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें एसिड लिया प्लस हमने मेटल ले लिया। ये मेटल है कोई सा भी प्लस हमने डाइल्यूट HCl लिया और हमने थर्मामीटर लगा दिया सो दैट वी कैन नोट द चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को हमने इसके ऊपर कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 ईच मेटल को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। फर्स्ट आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर। एक्चुअली सोडियम पोटेशियम हम नहीं लेते बिकॉज दे डू विग्रस रिएक्शन एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू परफॉर्म इन द लैब. So we take iron, aluminum, magnesium and dilute HCl in this test tube. So we see that hydrogen gas is producing, and in each case the rate of reaction is different and it depends on the reactivity of metal. Sodium, potassium do react vigorously. That's why we do not perform this reaction in the laboratory. And when we see their reactivity sequence, so it comes like magnesium, it's very fast and the temperature change, high temperature we observe in this case only because we record the temperature of each metal. So in case of aluminum, the reactivity of aluminum is less than magnesium, then zinc, then iron, and copper is least reactive. So we can perform this activity with so many metals.
And if I take metal and react with HNO3 in the same test tube, so what I will see, I will get metal nitrate, and the formula depends on the nature of metal, whether it will come first 1, 2, 3. It depends on the nature of metal, and we see hydrogen. But actually this hydrogen immediately get oxidized with HNO3, because HNO3 is an oxidizing agent. So it reacts with the hydrogen gas and it produces water or water and NO2 or N2O or nitric oxide. It depends on the nature of metal. And if we take manganese or magnesium, in that case only we get hydrogen gas. But in rest of the cases, instead of hydrogen gas, we get water and oxides of nitrogen. It may be one oxide, it may be two, or it may be mixture of many oxides. So this was the reactivity of metal with acids. In this slide, we will see reaction of metal with सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल आयंस, यानी कि हम एक मेटल लेंगे और जो सॉल्यूशन लेंगे वो दूसरे मेटल आयन का लेंगे, एंड वी विल सी देयर रिएक्टिविटी. फॉर दिस we will perform one activity. In this I have taken one copper nail, this is copper wire and this is iron wire, and I have immersed these nails in different solution. Iron nail in copper sulfate solution and copper nail in iron sulfate solution. So after 20 minutes we will observe what is going on, whether they are reacting or not reacting. So what we see that iron, because iron is reacting with copper sulfate solution, means copper ions, and iron is giving iron plus copper plus 2, they are reacting and giving Fe plus 2 and copper metal. So this copper metal will get coated over this iron nail, and the slowly color of the solution means copper sulfate solution will get faded. ये blue color का होता है, और after some time we will see that color is getting fade, and after some time it will turn colorless. लेकिन in this reaction copper and iron sulfate, they do not react, means copper is not able to displace ions from iron sulfate solution. Why it is so? Whether each metal can displace other ion from other solution? No. It depends on their reactivity, and this is the reactivity series which we learned in chapter 1 also during displacement reaction. Potassium and sodium are highly reactive. They can displace almost all cations from salt solution, but calcium can displace only that many. So in this case you can see that position of iron and copper, this is one series only. After hydrogen you will read copper, mercury, silver, gold. So you have to write here only, because iron is placed upper than copper in this position, in this series. So because there is iron, so iron will react with copper and it will give iron plus 2 and copper. But copper will not react. Copper will not react with FeSO4 because it is less reactive than iron. Similarly, if I take metal A and if I take solution of metal B, it may be B plus or B plus 2. So it will give Ma plus and Mb, metal B, if the reactivity of A is greater than B, and if the reactivity of B is greater than A, then this reaction will not take place. So this is the all, you can say, concrete funda that reactive metals can displace less reactive metals from their solution or from their salts. And in this sequence only, if I take zinc and copper, this is zinc and copper sulfate. What will happen? It will give zinc sulfate and copper, means this reaction will take place. And similarly, if I take zinc and hydrogen, because hydrogen is in the middle of the series and zinc is placed above hydrogen, so that's why zinc will react with all acids HCl, H2SO4, and it will give zinc chloride plus hydrogen gas. So the elements present in the
upper half of this series, they all can displace hydrogen from the acids. So this is the concrete of reaction of metal with metal ions of other metal. Here is one activity for you. These are 4 metals A, B, C, D, and these are 4 solutions: ferrous sulfate, copper sulfate, zinc sulfate, and silver nitrate. What will happen if I insert metal A in the solution of ferrous sulfate, copper sulfate, zinc sulfate, silver nitrate, and same I insert B, C, or D in these solutions? So these are the observations, and we know that the reactivity of zinc, iron, copper, silver is like that, and this I have taken from reactivity series which I showed you in my last slide. तो इसमें अब हम एक एक करके देखेंगे कि जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव है, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर. दैट वी नो फ्रॉम द रिएक्टिविटी. हम इसमें देखते हैं कि मेटल ए आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, उसमें से आयरन को, लेकिन कॉपर को कर पा रहा है. तो इसका मतलब वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन से क्या है, कम रिएक्टिव है. तो इट मीन्स कि जो ए है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी रिएक्टिविटी रखता है. नेक्स्ट जो है ए कॉपर सल्फेट को कर रहा था, जिंक और सिल्वर को नहीं कर पा रहा. तो सिल्वर से उसकी कोई रिएक्शन ही नहीं है और जिंक को भी साथ उसकी कोई नहीं है. तो अब वो क्योंकि इसके ऊपर है इसलिए जिंक से रिएक्शन नहीं कर रहा. अब बी जो है फेरस सल्फेट को कर पा रहा है. अब बी फेरस सल्फेट में से आयन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो क्या है, आयन से तो ऊपर है, ये बात पक्की है. फिर सी को अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को ओनली डिस्प्लेस कर पा रहा है. तो इसका मतलब सी क्या होगा, वो यहाँ पे होगा, सिल्वर से तो ऊपर ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो. नेक्स्ट अगर हम डी की बात करें तो डी क्या है, इन चारों से ही रिएक्शन नहीं कर रहा. तो इसका मतलब डी क्या हुआ, सबसे नीचे हुआ, कि जो ना सिल्वर से कर रहा है, ना जिंक से कर रहा है, ना कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ना आयन को कर रहा है. तो अब इनको अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना हो तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आ रही है, बी की. नेक्स्ट किसकी है, ए, देन सी और देन डी. अब इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, जैसे जहां क्रॉस लगाया है इट मीन्स रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जहां डैश लगाया है वहां पे अभी हमने रिएक्शन की नहीं है. तो अब आप ये बताओ, ए को अगर मैं जिंक सल्फेट में डिप करूं, उसमें इमर्स करूं, तो क्या होगा. अब ए कहाँ था, यहाँ. तो ए जिंक सल्फेट से रिएक्शन कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, नो. इट मीन्स देयर विल बी नो रिएक्शन. ए को अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट में करूं तो रिएक्शन विल हैपन, यानी कि ए तो सिल्वर नाइट्रेट से ऊपर है तो वो इससे रिएक्शन कर लेगा. नेक्स्ट अगर मैं बी को कॉपर सल्फेट में करूं तो देखो बी तो सबसे ऊपर है, कॉपर सल्फेट में इमर्स करूंगी तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा. सी का सारी गिवन है, डी की सारी गिवन है. तो इसमें जो रेड मार्क लगाया है इट मीन्स वो अभी हमने रिएक्शन की नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और जहां क्रॉस लगा दिया मीन्स हमने रिएक्शन तो की लेकिन रिएक्शन हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. और राइट का मीन्स वहां रिएक्शन की और हुई भी सही. तो ये हमारी एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी से अगर आपने वो सीरीज याद रख रखी है तो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. हाउ डज मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. नॉन मेटल से रिएक्शन इनकी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं. इसमें हम क्या देखते हैं कि आपने मेटल लिया, मेटल में आप सोडियम ले सकते हैं, आप पोटेशियम ले सकते हैं, आप लिथियम या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, एनी मेटल. अब हम इसकी रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल से देखते हैं, जैसे हम क्लोराइड ले लें, फ्लोरीन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, सल्फर लें. तो हम क्या देखते हैं, जितने भी मेटल्स हैं इनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट से एक ज्यादा या दो ज्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बात करें सोडियम की तो सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8, 1. तो इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. अगर इस 1 को निकाल दें तो ये अंदर क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड ऑक्टेट. अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो फुलफिल्ड ऑक्टेट है. तो जैसे ही अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे सोडियम तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 8, बस इतने बचेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस में. लेकिन आप बात करो फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या है,
2 and 7, यानी कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरीन से फ्लोराइड। तो हम क्या देखते हैं, सोडियम और फ्लोरीन की अगर हम रिएक्शन कराएं तो सोडियम तो बन जाता है सोडियम प्लस, और फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोराइड में। तो दो अपोजिटली चार्ज आयंस बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, और ये दोनों आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। मीन्स जब मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे प्रोड्यूस अपोजिटली चार्ज आयंस, एंड अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ये जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। सेम वे में हम किसकी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे सोडियम की क्लोरीन के साथ। तो ये सोडियम था 2 और 8, क्योंकि मैंने एक निकाल दिया तो अब ये बन गया सोडियम प्लस, और क्लोरीन के पास 2, 8 और 7 थे, क्योंकि टोटल 17 होते हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए सोडियम से, जब सोडियम प्लस बना तो ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बन गया Cl माइनस, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आप इसमें सोडियम की जगह क्या ले सकते हो, पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होता है, 2, 8, 8, 1। तो अब इसका, क्योंकि 19 होता है, अब इसका ये 1 चला जाए तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम प्लस, एंड इट कैन रिएक्ट विद फ्लोराइड, इट कैन रिएक्ट विद क्लोराइड। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दे डू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास है, एक डोनेट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, एंड दे प्रोड्यूस अपोजिटली चार्ज आयंस, एंड द bond formed is called ionic bond and it is electrostatic in nature। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इनसे, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। सेम वे में जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पढ़ा, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी पढ़ सकते हैं, कि कैल्शियम का क्या होता है 20, तो 2, 8, 8 और 2। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसको, ऑक्सीजन को, या 2 फ्लोरीन को, या 2 क्लोरीन को। जैसे यहाँ हम ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लेते हैं, 2 और 6 होता है, और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 and 8, 10। तो ये बन जाएगा ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, कैल्शियम प्लस 2। तो ये कैल्शियम प्लस 2 और ऑक्साइड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू मेमोराइज देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल शेल्स, कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माई चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपने मेरा वो नहीं देखा है वीडियो, तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने सबका क्या किया, आपको याद करने का तरीका बताया है। नेक्स्ट, अब आप सोडियम की रिएक्शन फ्लोरीन से, सोडियम की क्लोरीन से, सोडियम की ऑक्सीजन से, सोडियम की सल्फर से भी कर सकते हैं। सेम वे में मैग्नीशियम की इन सब से, और पोटेशियम और कैल्शियम की भी हम इनसे रिएक्शंस कर सकते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो आपने लिया एक कैटायन और ये एक एनायन। अब इस पॉजिटिव ने इस साइड से तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहां से इसका पॉजिटिव चार्ज अभी खाली है, तो ये इधर से भी माइनस से अटैच होता है। इस माइनस का यहां से खाली है, ये प्लस से बनाता है, फिर ये माइनस क्या करता है, प्लस से, प्लस माइनस से, ये प्लस से माइनस से। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि भाई इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। जो मेटल आयन है, कैटायन, या जो एनायन है, ये ऑल डायरेक्शंस में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और वो सारे आयन्स पास पास आके क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। और वो इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड है डायरेक्शनल नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। वाई? क्योंकि ये आयंस जो है स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इसी डायरेक्शन
डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, इसमें नहीं करेगा, या इधर करेगा, इधर से। ये ऑल डायरेक्शन से बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि ये चारों साइड से बनाता है, तो सबका जो जॉइंट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में मिलते हैं और इनके बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में एज वी ऑल हैव सीन दैट salt, common salt or table salt at home is solid in nature. Likewise, there are many compounds. We have seen sodium bicarbonate, sodium carbonate. They are all are solids. So ionic compounds are generally solid. Why they are solid? Because they are made up of oppositely charged ions and there is strong attraction between them. Because of this strong attraction क्या होता है, ये काफी क्लोज आ जाते हैं and they are solid in nature at room temperature. नेक्स्ट, अगर इस सॉलिड को मैं एक स्पैचुला में लेकर इसको हीट करूं तो मैं क्या देखती हूँ, इट नेवर मेल्ट्स। जो रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको ओपनली ऐसे बर्न करें तो हम क्या देखते हैं, इट नेवर मेल्ट्स। इट मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी हाई। तो इसका नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज हाई? बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके बीच के अट्रैक्शन पे। व्हेन अट्रैक्शन इज मोर तो यू नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, काफी हाई। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को वाटर में ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये क्रिस्टल ले लिया जिसके एंड पे, एक एंड पे मैंने पॉजिटिव आयन एज्यूम किया, एक पे नेगेटिव, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस पॉजिटिव एंड के पास ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस तरीके से आते हैं, और नेगेटिव के पास कैसे आते हैं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव से आते हैं। तो अब क्या होगा, इस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं और एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया, इधर भी इधर भी इधर भी, और एक स्फीयर बन गया। तो इस फोर्स से, क्योंकि इस अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, एक एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी इस प्लस माइनस के बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। और जब वो ब्रेक कर देती है तो आयंस, एक प्लस अलग चला जाता है और एक माइनस अलग। तो इस तरीके से जैसे ही आप वाटर में आयनिक कंपाउंड्स को ऐड करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले प्लस माइनस को चारों तरफ से सराउंड करके उसका हाइड्रेशन कर देते हैं, और इस हाइड्रेशन से एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी क्या करती है, हाइड्रेशन एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और आयंस अलग अलग होके सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो अब क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या देख रहे हो, अपोजिटली चार्ज आयंस, नाउ दे आर फ्री। अब वो आयंस जो हैं फ्री हैं। पहले ये आयंस क्या थे, एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये फ्री हैं, एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव इधर एक पॉजिटिव इधर, ऐसे दे आर फ्री टू मूव। अब इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दें और उनको हम क्या करें, सर्किट से जोड़ दें, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो नेगेटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयंस जाते हैं, तो जिससे सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water and their solution is good conductor of electricity। और साथ में हम क्या कहेंगे, अगर हम सॉल्यूशन की जगह उनकी मोल्टन स्टेट लें, ये मैंने मोल्टन स्टेट ले ली, यानी कि हाई टेम्परेचर तक मैंने उसको गर्म किया और क्या किया, मोल्टन स्टेट ले ली। तो मोल्टन स्टेट में भी क्या होता है, प्लस और माइनस दे आर फ्री टू मूव हाई टेम्परेचर पे। और अब आप 2 इलेक्ट्रोड लगाओगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा, सॉल्यूशन स्टेट और मोल्टन स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। एनोडाइजिंग, व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी फॉर्म थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। मीन्स अगर ये एल्यूमिनियम का कोई रॉड है या कोई आर्टिकल है, कोई यूटेंसिल है, इसके ऊपर हम क्या करें, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक कोटिंग कर दें, एक लेयर डेवलप कर दें, उसको हम क्या कहते हैं,
एनोडाइजिंग। इसको एनोडाइजिंग ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली करते हैं और उसपे हम एल्यूमिनियम को क्या बनाते हैं? एज ए एनोड। अगर आपने रोड पे करना है तो हम रोड को एनोड बना देते हैं, और कोई आर्टिकल को करना है तो हम उस आर्टिकल को यहाँ हैंग कर देते हैं और उसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप करके क्या करते हैं? उसको एनोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको हम डाइल्यूट H2SO4 में डिप करते हैं। अब जब इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ऑक्साइड आयंस जो हैं एल्यूमिनियम के पास आएंगे और एल्यूमिनियम की सरफेस पे पहले ऑक्साइड आयन आके ऑक्सीजन गैस बनेगी, और वो जो ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन गैस बनी वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके क्या बना देती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है और इसमें एक शाइनिंग डेवलप करता है। इसीलिए जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल हैं वो क्या होते हैं? काफी शाइनिंग होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम को हम एज एन एनोड बना के फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्वारेजिया। Aquaresia is the mixture of two acids. What are two acids? Concentrated or fuming HNO3 and HCl. Concentrated means very much concentrated. Fuming means इतना concentrate कि उसमें से नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन ऑक्साइड के फ्यूम्स निकल रहे हैं। इसमें HCl इतना कंसंट्रेट कि उसमें से HCl गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो इतने कंसंट्रेट एसिड दोनों को लेके किस प्रपोर्शन में लेते हैं हम? 3:1, और इसको हम मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन है which dissolves almost all metals in it. आप इसमें कोई सा भी मेटल, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जल्दी से किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो एक्वारेजिया में जाके क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये हमारे मेटल्स की एसिडिक metals की chemical and physical properties. In my next lecture we will see metallurgy of metals. अगर किसी को कोई डाउट है you can ask your questions in my comment box, and if you are liking my lectures please subscribe my channel, like my channel and share with your friends. Thank you.